Okay, Bacha. So today, as promised, we are going to start class 9 number system, a very important chapter because there will be a chapter named real number in class 10, which will require some concepts of this chapter. So let's start this chapter. There are a couple of things that we are going to study in this chapter. We are going to talk about rational numbers, which we have talked in class 8, and then we are going to talk about irrational numbers, p by q forms, and so on. So let's start with the very basic thing. दैट इज नंबर सिस्टम के बारे में हम कहानी पढ़ते हैं। सबसे पहले आया बच्चे क्या, नेचुरल नंबर। Remember, natural numbers are the numbers. We start with 1, 2, 3, also called counting numbers. Then came the guy named as whole number. Now these numbers starts with 0. So 0, 1, 2, 3, and so on. Then came the guy known as integers. Integers are the numbers with the sign, right? These are the integers. Then we are going to talk about rational numbers also in detail. Okay. So up till now, this much you already know, but we are going to talk about this also. What exactly is this? So rational number kya hote hain? So rational numbers are the numbers, as you already know, which can be written in p by q form, where q is not equal to 0. Talking about rational number, a thought should come into your mind that what is the difference between fraction and rational number? Because fraction is also numerator over denominator, and rational number is also similar kind of stuff between fraction and rational number. Now, if you recall, fraction was some part of some equal stuff, right? If I say, if these are the three equal parts, you will have this as 2 by 3. You cannot have negative two parts of something. It's absurd, right? फ्रैक्शन में नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन रैशनल नंबर में नेगेटिव हो सकता है। इसलिए बोला जाता है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, मतलब वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और इंटरेस्टिंगली रैशनल नंबर, जीरो भी एक रैशनल नंबर, बिकॉज जीरो के नीचे कुछ भी आप लगा सकते हैं, 0/1, 0/2 और एनीथिंग, राइट? इट विल कम एज जीरो। बट q cannot be equal to zero. That means you cannot have this. This is not defined. अब 3 से जब 0 को define करते हैं, so in the calculator will show cannot be calculated. So 3/0 is not a rational number, but 0 is in fact a rational number. That is the first question of your exercise also that we'll talk about now. So we can say that all rational numbers are fractions, but all fractions are not rational numbers. Oh, it's the other way around. My bad. All fractions are rational numbers, but all rational numbers are not fractions. I hope that statement is evident from the explanation itself. Okay, now, so we know what is the integers, we know what is whole number, we know what is natural number, what is rational number, but this chart is very important, not just for 8th, 9th, and 10th, it's important for all the classes from 6th to 10th. Okay, obviously in 6th we have till whole number, integer, whatever. Now, before we move ahead with the statements logic, there is some concept called statements. We should know the symbols of these categories. Natural numbers. Natural numbers is simply denoted by n. Natural numbers. Then whole numbers is simply denoted by w. Whole numbers. Then there is this guy called integers, which is denoted by z. I've told you so many times that z is from the Zerlin word, German word, which means to count. No one will ask you, but you should know. Then rational number, the symbol is q. That is the English word from the quotient. Quotient means something over something. So that's why it is from the word quotient, q. So these are the symbols that you should know. So in a way, if I have to write, I can also write that this is n, natural numbers. Then we have whole numbers. Then we have integers, that is z. Then we have what? Then we have rational number, that is q. This is rational number. This is the integers. This is whole number. And this is natural number. Now let's understand another concept. Some questions will be like this, called statement questions. Statement questions. Very important because this can come in MCQs form also in your exams.
See, the questions will be something like this. Every natural number is a whole number. Now, this is pretty easy. Natural number whole number होते हैं सारे, क्योंकि वो उसके इनसाइड है. कैन यू सी इट इज अ सब पार्ट ऑफ इट, उसके अंदर लाई कर रहा है. इट इज ट्रू. But if it is other way around, every whole number, that is the power of this flow chart actually. Every whole number is a natural number. Now, whole number is a bigger set and natural number is a smaller part. So it cannot come inside natural number, isn't it? So if we are going from inside to out, that is obviously false. But if we are going from outside to inside, that is true. So I hope you understood the logic. Let's take another one if it's not clear. Every whole number is an integer. Now you tell me, is it true? Yes, it is true. Why? Because whole number is lying inside the integers. पहला बंदा दूसरे बंदे के inside में है, right? But if we go the other way around, if I write every integer is a whole number, obviously it is false. जब भी आप पहले बंदे को देखें, पहला बंदा जो है दूसरे वाले बंदे से बिगर है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है फिर. तो आप इस बार क्या कर रहे हैं, आप बाहर से अंदर जा रहे हैं, लेकिन आप इनसाइड से आउटसाइड जाते तो ट्रू. ठीक. और ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल कंजिक्यूटिव लगातार हो, ऐसा भी हो सकता है. एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर. तो आप देखें फिर से, पहला वाला बंदा क्या दूसरे वाले बंदे के इनसाइड है? बिल्कुल है. नेचुरल नंबर रैशनल नंबर के इनसाइड है. इट डजंट मैटर हाउ डीपर इट इज, बट इट इज इनसाइड. So that means it is true. This is one way to do these questions by using this flowchart, or you can also justify natural numbers are the numbers which starts with 1, 2, 3, 4 and all so on, and rational numbers are the numbers which have p by q form. इन सब के नीचे आप 1 लगा सकते हैं, isn't it? तो p by q form में है, so that's what is the rational number. I hope that is clear. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा प्यारे बच्चों? We have understood a flow chart. We have understood the statements from the flow chart. And let's move on to the next topic. Next topic is finding finding wait, finding rational numbers between two rational numbers. This also you have done in class 8. Now there are two ways to do it. One that I call, it's not a name, but I have called it out on my own, midpoint method or average method, whatever you like to call it. Second one is called LCM method. Same denominator in the bracket. What it means, I will explain you in a minute. Now, midpoint method. Suppose I give you a question like find a rational number between 2 and 3. Now, midpoint method means you just find the average. That is, आप देखो ये रैशनल नंबर है क्योंकि नीचे 1 लिख सकते हैं. अब इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है? एक रैशनल नंबर निकालना है. तो 2 + 3/2 कर दीजिए, मिड पॉइंट निकाल 5/2. तो आपको बीच में एक रैशनल नंबर मिल गया. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप ऐसे कर करके, जैसे इन दोनों का मिड पॉइंट लेके यहाँ पे एक मिड पॉइंट, यहाँ पे एक रैशनल नंबर निकलेगा. इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे एक रैशनल नंबर निकलेगा. फिर से जो भी नंबर मिलेगा उन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, यहाँ मिलेगा. तो ऐसे निकलते जाएंगे, ऐसे निकलते जाएंगे. इसका मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में पता चली, दैट देयर आर infinitely many rational numbers between two rational numbers. Very important statement बच्चों. रैशनल नंबर्स एमसीक्यूज फॉर्म में एग्जाम्पलर में भी दे रखा है आप. ठीक है, तो पता होना चाहिए. आई हैव जस्टिफाइड व्हाई इट इज. तो कभी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? तो इनफाइनाइट. ओके. नाउ एंड ऑब्वियसली दिस प्रोसेस इज वेरी टायरसम, बिकॉज एज यू कैन सी अगर आप मिड पॉइंट निकालेंगे ऐसे निकालना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले का एलसीएम फिर उसका भी हाफ. इट्स प्रीटी टायरसम. So instead of that process, we go for this method. It's pretty popular and you will be using in exam, LCM method. Now, ये क्या होता है? अब मान लो 2 और 3 के बीच में यूजली आपसे 1 2 नहीं पूछेगा, आपसे बोलेगा 2 निकालो, 3 निकालो, 4 निकालो. मान लो आपको 5 निकालने, 5 रैशनल नंबर. एक निकालने को बोला तो भाई मिड पॉइंट यूज कर लो, लेकिन अगर 5 निकालने को बोले कब तक आप मिड पॉइंट लगाओगे? सो 5 रैशनल नंबर्स कैसे निकालें? अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले यू हैव टू ऑब्जर्व क्या डिनोमिनेटर सेम है. यस, सेम है. तो कुछ मत करो प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी ट्रिक बता रहे हैं. 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई. इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई. आई नो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा 5 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, बट 10 से मैं इसलिए करता हूँ कि हर बार ये मेथड अप्लाई हो जाता है. ठीक है, इन योर बुक.
ना 20/10 और 30/10। तो अगर अब मैं इन दोनों के बीच में आपसे पूछूं कि भाई 5 रैशनल नंबर बताओ, एक्चुअली आप 5 नहीं, आप 9 बता सकते हो। कैसे? बिटवीन, तो 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 6/10, 27/10, 27/10, 28/10, कोई से भी 5 बोल सकते हो आप। 29/10, 30/10 नहीं ले सकते, 20/10 नहीं ले सकते, क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है उनके बीच बीच में। तो ये 9 आपने निकाल दिया, आप कोई से भी 5 बोल दो, एनी 5। तो आई होप दैट इज क्लियर ना। Let's move on to another kind of a question. What if we have 3/5 और 4/5, और इन दोनों के बीच में आपको निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूँ फिर से। चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन खोल ही देते हैं। पहली एक्सरसाइज पहले, ये अब हमारी ऑडासिटी हो गई है to do these questions. Now, if you look at this exercise, the first question is zero a rational number. Of course it is, because it can be written as 0/1, 0/2, and so on. तो p by q फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए है। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अभी एक क्वेश्चन बताया ऐसा, नीचे 1 है, इधर भी 1 है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 30/10। एंड दिस विल बी 4/1, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, दिस इज 40/10। कोई से भी 6 बोल दो बच्चे, 31/10, 32/10। और देखो अलग अलग तरीके हैं इस क्वेश्चन के, तो अलग अलग सब बच्चों के आंसर्स आते हैं, ठीक है। सो नो नीड टू वरी कि पीछे से मैच नहीं कर रहा। 36/10, तो 6 आ गए, हो गया। अगला वाला देखो, थर्ड। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने। अरे ठीक है, फिर से वही करो, डिनोमिनेटर सेम है तो आप सीधा करो 10 से मल्टीप्लाई। अभी मैं ऐसा भी कराऊंगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो ये होगा 30/10, 30/50 सॉरी, और दिस विल 40/50। कोई से भी 5 बोल दो भाई, तो 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, और 35/50। ठीक है, तो ये आपने 5 बोल दी, दिस इज ऑल्सो डन। नाउ अगला वाला देखो, अभी अभी आपको फ्लो चार्ट से कर रहा है, बना लो फ्लो चार्ट अगर नहीं याद है तो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या पहला बंदा दूसरे के इनसाइड है? पहला बंदा दूसरे के इनसाइड है, बिल्कुल है, तो राइट। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या इंटीजर होल नंबर के इनसाइड है? नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या रैशनल नंबर होल नंबर के इनसाइड है? नहीं, तो फॉल्स हो गया, तो पहला ट्रू है। फर्स्ट एक्सरसाइज विद इन मिनट्स वी हैव फिनिश्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले एक कंसेप्ट समझेंगे अब हम, जो चैप्टर में पहली बार आप सुनेंगे क्लास 9th में, इरैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर तो आपने पहले भी सुना है, तो देखो इरैशनल, इसको मैं काफी तरीके से पढ़ा हूं। पहला तरीका इसको डिफाइन करने का, जो भी नंबर रैशनल नहीं होते वही रैशनल होते हैं। मतलब जो भी नंबर आप पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल होते हैं। देखो 2 डेफिनेशन दे दी मैंने आपको। अब तीसरी डेफिनेशन के लिए हम एक कंसेप्ट समझेंगे, जिसे कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। चलो तो बात करते हैं इधर डेसिमल एक्सपेंशन की। डेसिमल एक्सपेंशन, so there are 3 types of decimal expansion. First is terminating. Second is the non-terminating, terminating but repeating. Third one is non-terminating, terminating and non-repeating. बाय द वे, आपको नोट्स की पीडीएफ इस वीडियो के लिंक में नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। सो नो नीड टू वरी अबाउट राइटिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा। चलो टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब जैसे डेसिमल 3 को थ्रू से डिवाइड किया तो 1.5 आएगा, फिर तो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया डेसिमल यहाँ पे। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, चलो 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 1 को 3 से डिवाइड किया, डेसिमल 0, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, 1 0। अरे ये तो बार बार 3 3 3 3 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, बार उस पे लगाते हैं जो रिपीट कर रहा होता है। तीसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मान लो मैंने एक ऐसी वैल्यू लिख दी 0.1 2 3 4 5 6 7 सो, क्या आप देख रहे हो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। तो ये 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग जो टर्मिनेट ना हो बट रिपीट हो, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग जो ना ही टर्मिनेट हो रहा ना ही रिपीट हो रहा। अब प्यारे बच्चे एक चीज समझो, अगर ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। मतलब कि अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर इनमें से दोनों में से कोई भी है तो रैशनल नंबर।
और अगर ये होगा तो इरेशनल होगा। मतलब एक तरीका याद करने का, देखो रेलेवेंट क्या होता है, जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। इरेलेवेंट जो वैल्यू नहीं है, मतलब इर का मतलब नेगेशन होता है। तो जैसे ही दोनों में नॉन लगेगा, मतलब दोनों में नेगेशन है, तो वो इरेशनल होगा, सिंपल सा फंडा। और बाकी दोनों क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो अब आपको डेसिमल एक्सटेंशन सामने आ गया है। तो आपको रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन पता चली, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कितनी तरीके से हम इरेशनल नंबर बता सकते हैं। एक और तरीका, क्या आपको पता है कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 बता सकते हो, 2 होता है, वैसे प्लस माइनस 2 होता है, लेकिन अब इस पे नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। बट व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 2? डू यू नो दैट इट इज एक्चुअली 1.414, बट व्हाट इज दैट नंबर? 1.414 और आगे भी चलता है, टर्मिनेट नहीं होता, ना ही रिपीट हो रहा है। तो बच्चों, एक चीज ध्यान रखो, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये सारे इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर से एक बात याद आई भाई, पाई को कैसे भूल जाएं, क्यूटी पाई। और देखो पाई क्या होता है, सबसे पहले तो पाई को जब भी बच्चों से पूछ लो, बोले लग जाते हैं 22/7। अरे ये तो गलत है, ये वैल्यू आप मान के चलते हो फॉर योर कैलकुलेशन की 22/7 है, लेकिन वो 22/7 नहीं होता। देखो पाई क्या होता है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मान लो आपने सर्कल पढ़ा होगा, सर्कल में सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, बिल्कुल होता है। सर्कमफ्रेंस में बाउंड्री। और क्या आपको पता है ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमीटर। तो आप इसको पाई इंटू डायमीटर भी बोल सकते हो प्यारे बच्चों। और पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर मैं निकालूं, सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। मतलब पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। इट्स द रेशियो। मतलब आप कितना भी बड़ा सर्कल ले लें, आप अपना प्ले ग्राउंड ले लें स्कूल का, एक रेडियस बनाए और बड़ा सा प्ले ग्राउंड बना लें, और उसको, उस प्लेग्राउंड की बाउंड्री को उस प्लेग्राउंड के डायमीटर से डिवाइड करो, हमेशा पाई के बराबर वैल्यू आएगी। पाई के बराबर मतलब 3.1415 एंड सो ऑन, यही वैल्यू आएगी, नो मैटर कितना छोटा सर्कल लो और कितना बड़ा सर्कल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसलिए पाई मतलब 22/7 नहीं होता है, पाई का मतलब होता है रेशियो ऑफ सी एंड डी, सर्कमफ्रेंस ओवर डायमीटर। ना, पाई की जो वैल्यू मानी जाती है, वो मानी की जाती है, आती है जब जब आप सर्कमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हो, ऐसी कोई वैल्यू आती है बच्चों। ना ही ये टर्मिनेट करती है और ना ही ये रिपीट करती है। और जब दोनों में नॉन होता है तो आपको पता है कि वो क्या होता है, इरेशनल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन 22/7 एक रैशनल नंबर है, और ये पाई की वैल्यू आप अज्यूम करते हो अपनी कैलकुलेशंस को इजियर बनाने के लिए। जैसे जी की वैल्यू एक्चुअली 9.8 होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हो, फिजिक्स, टू मेक योर कैलकुलेशन इजियर। ना, लेट्स मूव ऑन। पाई के बारे में हम बात कर रहे थे, सॉरी रैशनल नंबर के बारे में बात कर रहे थे, तो हमें एक और डेफिनेशन पता चले, स्क्वायर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो वो भी इरेशनल नंबर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले इरेशनल नंबर क्या होता है, तो आप देखो कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई वो रैशनल नहीं है, उसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग होगा, वो स्क्वायर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर होगा। 4 तरीके से आप इरेशनल नंबर बता सकते हो। सर नंबर सिस्टम में जो आपने फ्लो चार्ट बनाया था, क्या वो कहीं पे फिट होता है? हाँ देखो यहाँ फिट होता है, एन है, यहाँ पे होल नंबर, यहाँ पे जेड, एंड यहाँ पे क्यू, राइट, रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर की अलग ही इधर दुनिया है साइड में। इरेशनल नंबर को बाय द वे किसी से भी नोटेट कर सकते हैं, अलग अलग जगह से नोटेट करते हैं, पी से डोनेट कर लो, आई से कर लो। याद रहे कोई डेफिनेट नोटेशन नहीं डिसाइड हुआ है इरेशनल, जो भी रिफ्रेशर्स देखोगे अलग अलग मिलेगा, ठीक है, इसी वजह से। तो ये इरेशनल यहाँ पे, तो आप देखोगे तो इरेशनल की दुनिया अलग है। और जब इन दोनों को मिला के बोलते हैं, इन दोनों को मिला के तो बनता है रियल नंबर, जो आप क्लास 10th के बारे में बात। चलो तो अब आ जाते हैं हम इरेशनल नंबर में। पता चल गया हमारी ऑडासिटी हो गई है प्यारे बच्चों, औकात होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज करने की। लेकिन सेकंड नहीं, थर्ड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज पे आएंगे बाद में, पर इधर आ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म, से व्हाट काइंड ऑफ अ डेसिमल एक्सटेंशन ईच हैज। तो ठीक है भाई, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये क्या होगा, 0.36, 100 से डिवाइड करते हो पीछे चलता है ना डेसिमल, तो ये कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग। मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, 1/11। देखो 1/11 डेसिमल लगाया 0, और अगर एक और 0 चाहिए होगा तो 0 लगाना पड़ता है ऊपर, 9 × 99, 1 आया, डेसिमल से 0 मिला, नहीं होगा डिवाइड, तो एक और 0 लोगे तो ऊपर 0 लगाना पड़ेगा, 9 99। अरे यार क्या एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो,
बार बार 0909 रिपीट होगा, तो मतलब 09 के ऊपर बार, तो मतलब इसकी वैल्यू ये होगी, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगले पे आ जाओ। 4 1/8 दैट इज 32 33/8। 33 को 8 से डिवाइड करो। 4 8 32, डेसिमल 0। 8 1 8, 2, डेसिमल 0। 8 2 16, 4, डेसिमल 0, 5। So that means you are getting 4.125। अरे, तो खत्म हो गया, डेसिमल खत्म हो गया। तो मतलब ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग। ये वाला आप खुद से ट्राई करना बच्चों। ये वाला मैं बता देता हूँ, देखो इसका शॉर्टकट है कि अगर आपको 2/11 निकालना है और आपको 1/11 पता है, 1/11 0.09 बार था, तो 2/11 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। लिख सकते हो, बिल्कुल। सो 2 का आप किससे मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू क्या थी? 0.09 बार। जब 2 आइस करोगे इसका क्या आएगा, देखते हैं। 18 1 0, 0.18 बार। तो मतलब ये आएगा, सीधा निकाल सकते। 3/11 के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा कर सकते हो। ये भी आपका होमवर्क है, करना हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन वही बात कर रहा है जो मैंने आपको अभी ये वाली बात बताई। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूँ। P/Q फॉर्म क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चे आपका ऐसा होगा, एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, PT1 हो, मिड टर्म हो, जो भी हो। जैसे आपका ये 0.6 बार है, आपको बोल रहा है कि इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसके लिए कुछ स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, आप हर बार वही स्टेप्स लगा सकते हैं। हर बच्चे अलग अलग तरीके से भी करते हैं, इसका एक और तरीका होता है, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बता। देखो क्या करो, लेट एक्स इसको, और उसका फिर मैं वैदिक मैथ ट्रिक भी बताऊंगा आपको। एक्स मान लो जो भी दे रखा है, यही दे रखा है बार का मतलब। अब जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से। तो क्या हो जाएगा? 6.6666 एंड सो ऑन। हाँ, नेम दिस इज 1, दिस इज 2। राइट, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अगर पहली बार करो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगेगा, बट लेटर ऑन इट विल बी वेरी इजी, बिकॉज हम रिपीट करेंगे। 10x में से आप x माइनस करेंगे, इधर की तरफ इधर माइनस होगा, और इधर की तरफ इधर माइनस होगा। तो देखो 6 कैंसिल्स और माइनस कर रहे हैं, क्या बचा? 6। और 10x में से x गया 9x, तो x की वैल्यू क्या होगी? 6/9, दैट इज 3 2 3। हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में देते हैं। तो मतलब 0.6 बार को अगर P/Q फॉर्म में करें तो 2/3 आते हैं प्यारे बच्चों। चलो एक और करते हैं ऐसा, नो नीड टू वरी, अगर नहीं आया तो थर्ड पार्ट देखते हैं। 0.0001 बार। अब देखो, अब फिर से वही करो, लेट एक्स इक्वल टू 0.001001, यही हो रहा है। तो अब आप देखोगे 3 जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? 1.001 यहाँ आएगा। तो बच्चे देखो, 001.001 आपके माइंड में नहीं चल रहा होगा, आगे डेसिमल के जीरो की वैल्यू नहीं होती। इसको फर्स्ट बोलो और इसको सेकंड बोलो। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सेम स्टेप चलने हैं। 1000 में से x जाएगा तो 9 और इधर सब्ट्रैक्ट कर लो। वर्टिकल वे में आसान होता है, कभी गलती नहीं होगी। 0.001 देखो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1। तो x के, अभी मैं आपको एक ऐसी वैदिक मैथ ट्रिक बताऊंगा कि आपको सीधा मिली सेकंड्स में आंसर मिल जाए। तो x की वैल्यू क्या होगी? 1/999। ये भी हो गया। सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, 0.47 बार एग्जाम्स में बहुत आता है। देखो 0.47 बार, इसका मतलब 7 रिपीट हो रहा है बस। तो 0.477777, बस 7 रिपीट हो रहा है। तो 7 के ऊपर बार है, तो मतलब एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो 10x, 10 से मल्टीप्लाई 4.77777। 10 से मल्टीप्लाई वो आगे जाएगा ना, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 अगेन, फ्रॉम 2 अगेन। तो क्या होगा? 10x में से x सब्ट्रैक्ट होगा ओवर हियर, एंड ओवर हियर 4.777 में से विल सब्ट्रैक्ट 0.777। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस 7 विल कैंसिल आउट। ओए ओए ओए, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, गड़बड़, गड़बड़ हो गया, गड़बड़। जब माइनस कर रहे हैं तो नीचे 0.4777, ठीक है। देखो 7 से 7 कैंसिल, कैंसिल। 7 में से 4 गया 3, डेसिमल का डेसिमल 4.3 आ रहा है, ये 9x आ रहा है, तो x कितना होगा? 4.3/9। डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा? 90। तो मतलब आंसर क्या हुआ? यस, 43/9। हो गया P/Q फॉर्म। देखो भाई, अब मैं आपको एक वेरी मैथ ट्रिक बता रहा हूँ जो सीधा सीधा हो जाएगा P/Q फॉर्म। ट्रिक क्या है कि जो नंबर है डेसिमल के बाद, पहले तो वो लिख दो न्यूमरेटर में, और जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो। तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक 9 आ जाएगा, यही आया था 6/9।
सिंप्लीफाइड कर लो 2/3, तो देखो क्या वही आया था मिली सेकेंड्स में जो हमने कर दिया, बिल्कुल आया था। ये है वैदिक मैथ्स का फायदा। एक और देखते हैं, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं पहले। 0.001 के ऊपर बार है, कितना क्या है डेसिमल के बाद 001, इसका मतलब 1 ही होता है वैसे तो। और कितने डिजिट के ऊपर बार है, 3, तो 3 9 आएंगे, तो क्या हो गया 1/999, क्या यही आया था, देखो विद इन सेकंड्स आ गया, यही आया था, शाबाश। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, जब मिक्स्ड वाली होता है, मिक्स्ड वाली मतलब एक पे बार है एक पे बार नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रिक बदल जाती है। क्या बदल जाती है, जो नंबर है वो लिखो, जिसपे बार नहीं है वो माइनस करो, और जितने बार होते हैं तो 9 लगाते हैं, जितने बार नहीं है उस पर जीरो लगाओ, फिर उतने जीरो, तो क्या हो जाएगा 43/9। क्या यही आया था, देख लो यही आया होगा। आ गया, आ गया, आ गया। इधर सॉल्व किया क्या 43/9, ये वाला समझ नहीं आया, फिर से देख लो। 0.38 बार है मान लो, तो क्या करोगे, 8 बार नहीं, थोड़ा आसान रखते हैं क्योंकि जीरो से डील नहीं कर रहा मैं अभी आपके साथ। ये है, तो आप क्या करेंगे, 37 लिखेंगे, फिर उसमें से 3 माइनस करेंगे, और फिर नीचे क्या आएगा 9, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक के, तो एक जीरो, तो 34/90 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, 1 7 और 4 5। तो भाई ये वैदिक मैथ्स ट्रिक बहुत कमाल की है, आप यूज कर सकते हैं, नॉट इन एग्जाम्स दो बट टू चेक योर आंसर। फोर्थ फिफ्थ एग्जाम में नहीं आएगा, मैं अभी वही करा रहा हूँ, एग्जाम्स में आएगा आपके लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स भी छोड़ सकते हो आप, सेवंथ में कराऊंगा आपको, सिक्स छोड़ सकते हो, सेवंथ एट्थ और नाइन्थ कराएंगे, पहले नाइन्थ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो रैशनल रैशनल बताया था, देखो इसके अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 23 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये रैशनल हो जाएगा, सिंपल। ये 225 किसका स्क्वायर है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 225 आता है, दैट इज रैशनल। टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर, बताया था। ये देखो ध्यान से देखो, 7.478, रिपीट हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दोनों में नॉन नहीं है तो ये रैशनल होगा, अगर दोनों में नॉन होता है रैशनल। अब बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के। 1.101, 101, फिर 001, 0001, फिर 00001। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर देखो जीरो रिपीट हो रहा है, वन रिपीट हो रहा है, अरे नहीं, लगातार रिपीट होना चाहिए ऐसे, लगातार, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा कि बढ़ के घट के हो रहा है। तो ये देखोगे तो ध्यान से, डॉट भी लगा हुआ है, तो ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है, वो इरेशनल होगा, दिस इज इरेशनल, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। so this is done. Now let's coming on to the question number 7. Write three numbers whose अरे ये वाला तो आप खुद से बना लोगे, बहुत आसान है, होमवर्क है, एट्थ वाला इतना। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, इन दोनों के बीच में तीन इरेशनल नंबर निकालने हैं, बहुत आसान है। देखो क्या करो, पहले 5 को 7 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 7 7 49, 1 डेसिमल 7 7, 3 7 4 28, 2 decimal 0, 7 to the 7 to the 14, 6 7 8 the 56, बचा 4, 0 7 5 the 35, बचा 5। देखो जैसे ये वाली चीज फिर से आ जाती है ना, देखो ये 5 से स्टार्ट किया, 5 पे आ गया, तो मतलब सारा का सारा फिर से रिपीट होगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0.71428 बार इसकी वैल्यू। 9 को 11 से करो, देखो आपको आपको याद है 1/11 की वैल्यू आई थी 0.09 बार, करा था पहला क्वेश्चन। तो अगर 9/11 है तो इसका मतलब क्या है, 9 को 1/11 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 0.09 बार, तो क्या हो जाएगा, अरे चलो करके दिखा देता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई, 9 9 81, 8 0, तो मतलब क्या हो जाएगा, ओ 81, तो मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारा इस पे रिपीटेशन था, तो इसी पे रिपीट आएगा, 0.811111 ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। अब देखो कोई भी तीन बताने हैं, आपको पता है राशनल इरेशनल की डेफिनेशन लगा दो, इन दोनों के बीच में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बोल दो, लो भाई 7 2, इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 9 टर्मिनेट होगा, 9 रिपीट, 7 3 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, 7 9 ले लो, इन दोनों के बीच में होना चाहिए और नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, तो सबके आंसर वेरी करेंगे भाई इसमें, ठीक है। तो ये तीन ही मैंने कोई से भी तीन इरेशनल नंबर बताए। आज के लिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। मैंने आपको आज क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया जिसमें आपको फ्लो चार्ट बताया, देन वी डिड सम स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स वाली, कि ऑल रैशनल नंबर्स आर दिस, ऑल होल नंबर्स आर दिस,
फिर मैंने बताया कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं, सेम मेथड, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं बीच में। फिर मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन, और हमने इरेशनल नंबर्स की बहुत सारी डेफिनेशंस देखी, चार तरह की डेफिनेशंस देखी। डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हमने थर्ड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश ऑफ कर लिया, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना वैदिक मैथ से भी सीखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट एक्सपोनेंट्स को कैसे डील करते हैं, एंड देयर विल बी अ स्पेशल वीडियो इन विच आई विल ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दीज एंड हायर लेवल क्वेश्चंस। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। इस वीडियो के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।